Good morning and welcome back everybody to Basic Math by Sayakul. In the previous days, we have changed the name of the channel from Basic Math by Firdaus to Basic Math by Sayakul. So I hope that you all like this name of the new channel. And today we are going to study about the number system. What we have studied in the previous classes में जो हमने questions पढ़े थे number system के ऊपर, उससे हम क्या करेंगे, आगे proceed करेंगे और हम क्या पढ़ेंगे, simplification on the same properties that we have studied in the previous classes. जो properties हमने previous class में पढ़ी थी उसी properties पे हम कुछ अलग टाइप के questions करेंगे, that is simplification. In the last class we have done I think 1 or 2 questions of exercise 1.2. So today we are going to do the other questions of that same exercise. So coming back towards the topic, see in the third question it is given simplify. What we are going to simplify? First part it is given 2 to the power 2 by 3 multiplication 2 to the power 1 by 5. 2 की power 2 by 3 into 2 to the power 1 by 5. Now we have studied a property that if base is same a to the power x into a to the power b, it will be equivalent to a to the power x plus b. If base is same, then power will be added. So simply we are going to do in this question with the same method. इस question में हम क्या करेंगे, same method से करेंगे. So 2 to the power 2 by 3 into 2 to the power 1 by 5, it will be equivalent to 2 to the power 2 by 3 plus 1 by 5. Now reason you can write it down. A to the power x into a to the power b, it will be equivalent to a to the power x plus b, and property, it is the property of exponent. It is the property of exponent. Now we are going to take the LCM of 3 and 5. What is the LCM of 3 and 5? LCM कैसे निकालते हैं ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि अगर 3 और 5 है, सो लीस्ट नंबर क्या है, जो क्या कोई कॉमन नंबर है जो 3 और 5 को डिवाइड कर दे? नहीं है. तो हम क्या लेंगे, सबसे छोटा क्या है, 3 लेंगे. 3 1 जा 3, कॉपी डाउन 5 को एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, क्या कोई ऐसा नंबर है, 5 तो किसी और से डिविजिबल है ही नहीं, तो क्या लेंगे, 5 से ही करेंगे. 5 1 नोट डाउन करेंगे, 5 1 जा 5. सो 5 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 5. सो एलसीएम क्या जाएगा, 15 आया. नाउ 3 5 जा 15, 5 2 जा 10. जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. कितना आएगा, 3 5 जा 15 होता है. उसके बाद जो न्यूमरेटर होता है उसमें उसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5. इफ 15 इज डिवाइडेड बाय 5, 15 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. नाउ 3 into 1, that will be equivalent to 3. So 2 to the power 10 plus 3, that will be equivalent to 13 divided by 15. So answer is 2 to the power 13 divided by 15. It is the answer of this question, that is 2 to the power 2 by 3 into 2 to the power 1 by 5. Now in the second question हम क्या लिख लेंगे, 1 by 3 की पावर 3 into 7. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 by 3 की पावर क्या है, 3 है, होल सिंपल ब्रैकेट एनक्लोज बाय सिंपल ब्रैकेट, पावर 7. पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी. नाउ अगर डिनोमिनेटर में 1 डिवाइड बाई 3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर -3. नीचे प्लस में है, कुछ नहीं दिया, इट मीन्स इट इज इन प्लस. सो व्हेन इट विल गो एज इट इज इन न्यूमरेटर, इन द फॉर्म ऑफ द न्यूमरेटर, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी. अगर नीचे माइनस होती ऊपर जाती, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे दिया होता 1 by 3 टू द पावर -3, तो ये जब ऊपर जाती तो हो जाती 3 टू द पावर +3. लेकिन ये माइनस दी है तो ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, ये प्लस दिया ऊपर जाएगा, हो जाएगा माइनस में. सो इट विल बी 3 टू द पावर -3 सिंपल ब्रैकेट एनक्लोज बाय सिंपल ब्रैकेट, पावर 7. नाउ 7 3s are 21. So 3 to the power 7 3s are 21. So answer is 3 to the power -21. क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट. इट इज ऑल्सो है प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट. अगर डिनोमिनेटर में दिया है 1 by 4, कोई भी नंबर है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी नंबर है, अगर डिनोमिनेटर में प्लस में दिया है, +2 दिया है, तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर -2 हो जाएगा. अगर दिया है 1 by 4 टू द पावर
-2 दिया है, ऊपर जाएगा एज इट इज व्हेन इट विल बिकम अ न्यूमरेटर, जब ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, सो इट विल बी 4 to the power +2. सो आवर आंसर इज 3 to the power -21 is our answer. By simplifying 1 divided by 3 to the power 3, simple bracket 7, the answer is 3 to the power -21. So it is the 2 questions. Now we are going to do the third question. Third part अब हम करेंगे. I hope that you all have understood these 2 questions. ये पिछली प्रॉपर्टीज जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी उसी पे ही ये क्वेश्चन क्या है, बेस है. 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2. Third part is 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2. ये क्या है, 7 की पावर 1/2 है और क्या है, 8 की पावर क्या है, 1/2 है. सो बेस इसमें क्या है, बेस तो इसमें सेम है नहीं, बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है. बेस सेम नहीं है लेकिन क्या है, पावर हमारी सेम है. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है a to the power x इंटू b to the power x, a की पावर x है, b की पावर x है, बेस सेम नहीं है बट द पावर इज सेम, सो वी कैन राइट इट डाउन एज ab to the power होल पावर x. क्योंकि पावर सेम है तो हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की पावर एनक्लोज में सिंपल ब्रैकेट x लिख देंगे. सो 7 वी कैन राइट इट डाउन, 8 7 56, सो इट 56 to the power 1/2. हम इसे क्या लिख सकते हैं, 56 to the power 1/2 हम इसे लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट. वी कैन राइट इट डाउन हियर, since property of exponent. अगर दिया है 2 to the power 4, यहां पे दिया है इंटू 3 to the power 4, बेस तो डिफरेंट है पर क्या है, पावर दोनों की सेम है, यहां भी 4 है यहां भी 4 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 2 6 to the power 4, 6 की पावर 4 हम इसे लिख सकते हैं. सो दिस इज आवर आंसर. आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस. सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस. मुझे उम्मीद है आप लोग के क्वेश्चन समझ में आएंगे. सी देयर इज नथिंग बिगर और एनीथिंग डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन. क्या है, सिंपली जो हमने प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एक्सपोनेंट्स की, बेस सेम है, पावर क्या कर दी है हमने, ऐड कर दी है. बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो क्या किया, बेस को मल्टीप्लाई कर लिया हमने. क्या किया, 7 into 8, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया. मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी कॉमन पावर जो है वो हमने नोट डाउन कर दी है. सी 2/3 + 1/5, इसका हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एलसीएम निकाला. 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 5 का एलसीएम दैट इज 15. 3 5 = 15, 5 into 2 10, 5 3 = 15, 5 6 = 15, 3 1 = 3, 10 + 3 13, 13 divided by 15, this is our answer. 2 to the power 13 divided by 15, it is our answer. And in the second part, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बेस को मल्टीप्लाई किया हमने. क्या किया, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो उनकी कॉमन पावर है, कॉमन पावर मीन्स जो दोनों में पावर सेम है, 1/2 एंड 1/2 दोनों में सेम है, तो 1/2 हमने कॉमन पावर उनकी लिख दी. बिकॉज इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट दैट इफ a to the power x into b to the power x, it will be equal to a into b to की whole power x. So I hope that you all have understood these questions. मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप लोग मुझे दैट इज बेसिक मैथ बाय सैकूल पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो या अपना डाउट क्लियर कर सकते हो. सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड. आगे के क्वेश्चंस आप लोग रिवाइज कर लेना, और कोई क्वेश्चन ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. सो थैंक यू एवरीबडी एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज बेसिक मैथ बाय सैकूल. फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पेज. So thank you everybody and have a nice day.